Hello students, in the previous video we have talked about the valuation of security of a bond, of a debentures and of a preference shares. So today we are going to talk about the valuation of the equity shares. Equity shares are long-term financing sources for any company. These shares are issued to the general public and are non-redeemable in nature. Investors in such shares hold the right to vote and share profits and claim the assets of the company. Now, when we are talking about the valuation of an equity shares, the valuation of equity shares is more typical as compared to the bond, debenture or a preference shares. Why is it so? Because of two factors. The first is that the equity shares do not carry any fixed rate of dividend, whereas the other point is that equity shares have no maturity period. That means यहाँ पे जब हम equity shares का valuation करते हैं तो उसमें दो बात बहुत सामने दिक्कत करती है जिसकी वैल्यूएशन में थोड़ी सी हमें एस्टिमेशन करने में दिक्कत लाती है। वो एक बात ये है कि इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस बॉन्ड और डिबेंचर की तरह इंटरेस्ट कैरी नहीं करता या कोई इस पर फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता है यहाँ पे। और बाकी इन्हीं दोनों के बारे में यानी बाकी सिक्योरिटीज कंपेयर करने पे जहाँ पे उनकी मैच्योरिटी पीरियड होती है, लेकिन इक्विटी शेयर्स के साथ में ऐसी कोई भी मैच्योरिटी पीरियड नहीं होती है। सो इट सेज दैट the equity shareholders receive the residential profit and also the residual assets in the case of liquidation. From the point of view of calculation also, the valuation of equity shares are difficult because the rate of dividend is not given, and unlike the rate of interest or rate of preference dividend which remains constant over the life of the security, the rate of dividend on equity shares may be varying over the years. So the normal valuation model as applied for the valuation of equity shares. Here are the basic assumptions regarding the valuation of an equity shares. While ascertaining the value of equity shares, different assumptions are made regarding the company's future profits, the amount and the timing of the dividends, the required rate of returns, etc. Different approaches have been developed for the valuation of equity shares. These different approaches, however, make the following assumptions regarding the basic characteristics of equity shares. अगर हम यहाँ पे इक्विटी शेयर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक अप्रोच नहीं है, जैसे कि हमने पहले देखा था प्रेफरेंस में, डिविडेंड बॉन्ड्स में और डिबेंचर्स के केस में, तो वहाँ पे एक ही रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उसी के फॉलो हम क्या कर रहे थे और उसी से हम अपने बॉन्ड्स की या सिक्योरिटी की क्या कर रहे थे, वैल्यूएशन कर रहे थे। अनलाइक दैट केस इक्विटी में ऐसा नहीं है, यहाँ पे कई सारे अप्रोचेस हैं। और लेकिन अगर हम सारे अप्रोचेस की बात करें तो इन्होंने अजम्पशन रखा है और उनमें से कॉमन अजम्पशंस क्या क्या है हम उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। The first point is that equity shares does not have any redemption rate. The second point says that equity shares do not have any redemption or liquidation value. In case of liquidation of the company, their claim is residential in nature and arising in the last. Dividend on equity shares are neither guaranteed nor compulsory. Further, neither the rate or the timing of dividend is specified. So dividend can vary in any direction. अगर इन सारे अजम्पशंस की बात करें तो पहला अजम्पशन क्या कहता है कि यहाँ पे कोई फिक्स रेट ऑफ रिडम्पशन नहीं है। सेकंड पॉइंट इज दैट कि इसकी कोई रिडम्पशन वैल्यू भी नहीं है और नीदर पॉइंट कि यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ डिविडेंड जो है वो भी स्पेसिफाइड नहीं है, तो हमें ये भी नहीं पता है कि डिविडेंड की वैल्यू ज़्यादा होगी कम होगी, इसके बारे में भी हमें कोई एस्टिमेशन नहीं है। तो ऑल दीज थिंग रिमेन्स टू बी कॉन्स्टेंट। नाउ देयर आर बेसिकली थ्री अप्रोचेस फॉर द वैल्यूएशन ऑफ एन इक्विटी शेयर्स। द फर्स्ट इज बेस्ड ऑन द डिविडेंड्स, द अदर इज बेस्ड ऑन अर्निंग्स, and the last one is based on assets or a balance sheet. Today we are going to talk about the valuation on the based on dividends. Starting with the first case, an investor buys or acquires an equity shares in expectation of, first, a stream of future dividends from the company, second, a resale price of the equity shares after some time when he is no longer interested in the holding shares. That means एक जो इन्वेस्टर होता है वो इक्विटी शेयर्स को दो रीजन की वजह से खरीदता है। पहला क्या है कि फ्यूचर में उसे एक अच्छा डिविडेंड मिलेगा, और दूसरा बात जब उसको ज़रूरत नहीं होगी या उसको लगता है कि इक्विटी शेयर्स में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है तो उसको आसानी से मार्केट में सेल करके अपना प्रिंसिपल अमाउंट या इन्वेस्टेड अमाउंट को क्या कर सके, विड्रॉ कर सके। द ओनर ऑफ शेयर्स रिसीव द शेयर्स एज ए कंपनसेशन फॉर इन्वेस्टिंग द फर्म, सो एज लॉन्ग एज द फर्म इज ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड द इन्वेस्टर होल्ड्स द शेयर्स, ही वुड बी एक्सपेक्टिंग टू रिसीव अ डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी। तो जब तक उसको लगता है कि हाँ वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है तब तक उस शेयर को वो होल्ड करता है, अदरवाइज को मार्केट में सेल करके मार्केट से एग्जिट कर जाता है। सो द डिविडेंड प्लेज अ क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। दो देयर इज नो लीगल कंपल्शन टू पे डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स,
Still, most of the companies prefer to pay dividends to satisfy the expectations of their shareholders. Now talking about the valuation of equity shares based on dividends, तो यहाँ पे हमारे पास दो रूल्स होते हैं. The first is the single period valuation model and the next is the multiple period valuation model. Starting with the first model, अगर हम सिंगल के बारे में बात करें तो ये पहला अजम्पशन क्या अज्यूम करता है, डिविडेंड्स आर पेड एनुअली. द सेकेंड पॉइंट सेज दैट द फर्स्ट डिविडेंड इज पेड आफ्टर 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन और परचेज. ध्यान रखिएगा यहाँ पे वर्ड मैंने एक जगह लिखा है पेड मैनुअली, दैट इज एनुअली. थर्ड पॉइंट सेज दैट द सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स इफ एंड अकर्स एट द एंड ऑफ द ईयर एंड एट द एक्स डिविडेंड टर्म्स. तो पहली बात क्या होती है कि यहाँ पे डिविडेंड क्या होगा, एनुअली पे किया जाता है. फर्स्ट डिविडेंड पेड जैसे ही कि ईयर कंप्लीट होगा वैसे ही उस डिविडेंड को पे किया जाएगा. दैट मीन्स हम 12 महीने के गैप के पहले हम डिविडेंड को पे नहीं करेंगे. द सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स इफ एन अकर्स ओनली एट द एंड ऑफ ईयर. अगर हम इक्विटी शेयर्स को सेल भी करेंगे तो भी कब होगा, 1 साल के बाद. दैट मीन्स यहाँ पे जो ड्यूरेशन कितनी होती है, सिर्फ 1 year. तो हमारा जो ये सिंगल पीरियड वैल्यूएशन मॉडल ये अज्यूम करता है कि यहाँ पे जब हम शेयर्स को सेल करेंगे दैट कैन बी सेल्ड ओनली आफ्टर पीरियड ऑफ 1 year. ऑल द ट्रांजेक्शंस, चाहे उसका परचेज में हो, चाहे इसका डिविडेंड हो या फिर उसका सेल हो, ये सब कितने भी ड्यूरेशन के अंडर होगा, अंडर अ पीरियड ऑफ 12 months. Starting with the first model, that is a single period valuation model, says that it is to be noted that in case of equity shares, investment, that is the return, comes in two forms. Equity shareholders or the investors receive dividend and release a gain or loss on the difference between the price they pay for equity shares at the price at which they eventually sell it. Obviously यहाँ पे डिविडेंड का मतलब क्या होता है, एक तो वो क्या होता है, डिविडेंड मिल जाता है. इक्विटी शेयर से मार्केट से जो एक्स्ट्रा आपको कंपनी आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट शेयर कर देती है वो आपको डिविडेंड मिल जाता है. और दूसरा एक रिटर्न क्या होता है कि जिस प्राइस पे आपने खरीदा होता है, अगर आज उसकी मार्केट प्राइस से ज़्यादा होती है तो भी आपको क्या दे रहा होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है. तो देखा जाए हम बात करें तो एक इक्विटी शेयर आपको दो तरीके से रेवेन्यू दे रहा है. पहला डिविडेंड होता है और दूसरा जो उसकी शेयर की वैल्यू बढ़ने की वजह से जो आपको प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल गेन और लॉस. तो हियर इज अ बेसिक फॉर्मूला इन केस ऑफ सिंगल पीरियड वैल्यूएशन मॉडल. तो आप देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू कैसे कंप्यूट करते हैं. D1, D represents to the dividend received, P refers to the price at the end of an year, and P0 represents the price at which the equity shares were brought. That means price 1 year before the purchase, before the sale. डिवाइडेड बाई P0, तो सेम वैल्यू से हम डिवाइड कर देंगे. इसी को इक्वेशन को अगर हमने ब्रेक कर दिया है तो हमने P0 को दोनों को इंडिपेंडेंटली लिख दिया है, अलग अलग करके लिख दिया है. तो वैल्यू आपके हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया वो इस तरीके से फॉर्मूला आ जाएगा. Here's a practical which says that Bright Limited is expected to declare a dividend of ₹5 and reach a price of ₹70 a year. What is the price at which the equity shares should be sold to the investors if the required rate of return is 14%? यानी कि R की वैल्यू कितनी आ रही है, 14%. अब आपको उसकी P की वैल्यू को कंप्यूट करना है. आपको पता है जो हमें डिविडेंड मिलने वाला है वो कितने रुपीज़ का, ₹5 का मिलने वाला है. और जो प्राइस प्रिवेल कर रही है वो कितने रुपीज़ की, 70. दैट टू आफ्टर एन पीरियड ऑफ 1 year. तो याद होगा आप लोग का फॉर्मूला हम ये यूज़ करते थे D/1 + R⁴ जैसे बॉन्ड वगैरह में कैलकुलेशन करते थे. वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे भी यूज़ किया है. यहाँ पे डिविडेंड कितना, एक बार हमने P लिख दिया और एक बार प्रिंसिपल पे कितना लिख दिया, 70 लिख दिया. क्योंकि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 14. तो वैल्यू कितनी हो गई, 5 डिवाइडेड बाई 1.14 और 70 डिवाइड बाई 1.14. ऑन सॉल्विंग द वैल्यू वी गेट द आंसर एज 66 रुपीज़. दैट मीन्स उस इक्विटी शेयर की आज अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो उसकी वैल्यूएशन कितने रुपीज़ हो गया, 66 रुपीज़ होगी. Now talking about the multiple period valuation model, since there is no maturity period for equity shares, the value of an equity shares of indefinite duration is equal to discounted value. That means हम ये assume करते हैं क्योंकि एक इक्विटी शेयर्स का कोई डिफिनाइट पीरियड नहीं होता रिडम्पशन का, तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे कि जितना भी डिविडेंड मिलेगा उस डिविडेंड को, फ्यूचर वाली इनकम को आज हम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे. जैसे कि हम बॉन्ड्स में कंप्यूट करते थे, जैसे हम अपना प्रेफरेंस शेयर्स में कंप्यूट करते थे, जैसे हम डिबेंचर्स में कंप्यूट करते थे, वही सेम फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे भी लगा देंगे. तो आप देखोगे फॉर्मूला सेम वही है. डिविडेंड रिसीव दैट इज D1/1 + R⁴ पहली ईयर का, दूसरी ईयर का, तीसरी ईयर का, टिल n नंबर ऑफ ईयर्स प्लस द प्रिंसिपल अमाउंट रिसीव्ड एट द डेट ऑफ मैच्योरिटी. आपने जिस टाइम पे उसको सेल किया है उस टाइम पे जो आपको पैसा मिल रहा होगा दैट प्राइस अपॉन 1 + R⁴ कर देंगे. और इस इक्वेशन से अगर हम सॉल्व कर देंगे वी गेट द आंसर फॉर मल्टीपल पीरियड वैल्यूएशन मॉडल.
सिंस क्योंकि इस टाइप से हमने काफ़ी सारे प्रैक्टिस कर रखे हैं, डिवेंचर्स पे भी हमने ऐसा प्रैक्टिकल किया था, प्रेफरेंस शेयर्स पे भी ऐसा प्रैक्टिकल किया था, बॉन्ड्स पे भी ऐसा प्रैक्टिकल किया, तो मैंने मल्टीपल वैल्यूएशन मॉडल के साथ प्रैक्टिकल आप लोग के साथ में डिस्कस नहीं किया है. होप यू हैव नो इशू विद दिस. So thank you students, that's all for today. Have a good day.